Kangna, I just wanted to ask that recently Mahesh Bhatt has backed you up about the nepotism code. So what do you have to say about that? Because initially So you just a started off. request, we really do want a question on fashion. So we are here to talk about style and fashion. It's really not the platform. So can I have someone who has a question on fashion? I would like to say that such discussions, like I answered my earlier question, that such discussions are very important these days, and it is not to object to anybody's preferences. I'm talking to you. Please look at me because I'm personally answering your question. Just so that you can be satisfied. So it's not an objection. If you're talking about nepotism, it's an observation. I, as an individual, my prerogative is to leave my footprints behind for the ones who'll follow me. And it's important that they know where I fell, where I walked, where I stayed, and where I ran. So it's important for me that I talk about my own experiences, not to say that people should not do what they like to do, but to make what is relevant should be relevant, not because someone doesn't speak English or someone has sweat patches because they've come in a rickshaw for an audition, or someone is sharing an apartment with 10 people in an uncool location. They shouldn't be shamed for that, and the doors shouldn't be shut on their faces because of that. And I feel why I was avoiding it because it's a long answer, but also the fact that that today in an industry we have a lot more democratic environment is also because of people like us who've been working at it. I see newcomers easily say, भाई मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मैं तो हिंदी में ही बात करूँगा, So it's because we have made it appear cool, isn't it? So we are going to make outsiders feel and appear cooler, and that is my prerogative as an individual. If I don't do that, then I'm not, what is the purpose of my journey? So this is a healthy talk. I mean, what Bhatt Sahab said is his perspective, and everyone has had perspectives to it, but outsiders who come in, outsiders as in, what is an outsider? There's nothing called an outsider. We're all working to make cinema, and anyone who's working for some other intention is an outsider. So A, I don't consider myself an outsider. B, whoever comes from unconventional background, they should work towards it and not call themselves, oh, we've been lucky enough because we did not face any discrimination, or, oh, we were the chosen ones because, industry has accepted us with open hands. No, because people like us have been working at it. If today people are working with actresses who come from, indie film backgrounds or are niche, so-called niche backgrounds, it's because we have made it mainstream today. Today we can say that a film like Queen has been made mainstream because people worked at it. So we should all work at it, and not to point fingers and not to make it sound like a fight, but to make the society more democratic for everyone. Okay. तो अभी जैसा आपने बताया कि आप झारखंड से हैं, लेकिन आपका जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं पंजाब या देश के जितने भी अलग अलग शहर है वहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। भाई भतीजेवाद की बात की है आपने। क्या आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री के लिए, नेपोटिज्म जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में है, या फिर आप लोगों ने इसको कभी ना कभी फेस किया है? क्या आप लोगों को लगता है, आप दोनों की ओपिनियन क्या है इस पर? ये कि हम दोनों, बल्कि हम तीनों यहाँ पर हैं, हम तीनों बाहर से हैं, तो अगर हमारे खिलाफ कोई भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म हुआ होता तो फिर हम होते ही नहीं ना। मैं अपने बारे में ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग फिल्म इंडस्ट्री एट दैट टाइम, दैट दे लिसन टू मी. इट्स परहैप्स द ओनली प्लेस दैट आई ट्रूली बिलोंग. सो आई डोंट सी इट. आई डोंट नो अबाउट अनुष्का. अनुष्का, आपसे भी जानना चाहेंगे. Like what he said, if we are here today, it's because we are here today and we've reached where we are being within the same industry. I have personally, I would say, been launched by a banner like Yash Raj Films, who have always, and with me, with Ranveer Singh, they've always put talent before anything else. I don't even think this was something that I even thought of, quite honestly speaking, when I entered the industry. But at the same time, I think सबके experiences अलग होते हैं, and we all have to respect and value that. Yeah, that's it. Same industry में different people can be treated differently, and that has to be respected and valued.
बट क्या आपको लगता है कि जो एक Uh, आउटसाइडर sorry, ma'am, one last question. Hi, Anushka. लेट मी फिनिश दिस. ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बाहर से, क्या एक आउटसाइडर जो होता है वो फिल्म यहाँ पर आने के बाद इतनी मेहनत करके, जैसे आप लोग हैं आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके बाद इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो बुली करते हैं, इज़ दैट राइट? लाइक आप लोगों से जाना You are saying, you are asking whether it is right or आईफा के wrong. मंच पे हाँ जो हुआ Listen, उसके मैं बारे सुन लिया आपकी बात. आप इस तरह से पूछ रही हैं जैसे कि ऐसा होता ही है ना, ये आपका अजम्पशन है ना मैम. आई एम जनरली आस्किंग यू. I am telling मैं you- नहीं कह रही हूँ कि ये ऐसा होता है. जी. ऐसा होता, अगर ऐसा है, होता जी. तो सही होता या गलत होता, तो ऑब्वियसली गलत होता, राइट? ये यही तो कोई सवाल नहीं था बोलेगा. मेरा. हाँ, ठीक शुक्रिया. है. अब ये सवाल दोनों के लिए, बोथ आर इंडस्ट्री आउटसाइडर्स, यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. दिस होल नेपोटिज्म थिंग दैट इज बीइंग बैंडिड अबाउट ऑल दिस, व्हाट आर योर पर्सनल व्यूज ऑन दिस? मेरे ख्याल से शुरू में इट इज़ डिफ़िकल्ट डेफिनेटली एक आउटसाइडर के लिए, और नोटिस होने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. लेकिन आई थिंक टाइम हर चीज़ को प्रूव कर देता है. तो 5 साल के बाद में देखते हैं किसके बारे में बात होती है. बिल्कुल बहुत सही बोला है एक्चुअली निधि ने. मेरा भी यही है कि शुरू में वाकई थोड़ा होता है, लेकिन ये है कि टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता. एक्चुअली कोई नहीं रोक सकता. थोड़ा वक्त लगता है, और वो किसी भी फील्ड में लगता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही लोग आपको फिर एक्सेप्ट भी करते हैं. हाँ, ये है कि वक्त तो लगेगा, क्योंकि आपकी अपनी मर्ज़ी से चुना हुआ करियर है ये. आपकी चाहत थी, और जो चाहत होती है उसको फिर पूरा करने में वक्त तो लगता है. नहीं, चेंज कहाँ हुआ? मेरा तो वही है, सेम है भाई. मुझसे अगर कल मुझसे कोई कुछ बोलेगा कि भाई नवाज़ के सामने हम इस तरह के कास्ट नहीं कर सकते, जो न्यूज़ में आया, भले उसने कहा नहीं या नहीं कहा, लेकिन न्यूज़ में ही आया था, मैंने उसका सिर्फ जवाब दिया था एक्चुअली. तो थैंक यू वेरी मच. और कि भाई आपने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे सामने इस तरह की कास्ट नहीं हो सकते. बट मैं इस पर फोकस नहीं करता हूँ. तो मेरा तो वही वाला जवाब है. मैंने पहले भी फोकस इन सब चीज़ों पे नहीं किया था. ये इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बहुत है एक्चुअली. आपके जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पे भी है ये, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे भी है ये. हर आदमी, हर माँ, लाइक बहुत सारे लोग हर माँ अपने बेटों को बोलती है बेटा गोरी लेके आना बहू, तो है ना. तो गोरा जो है हमारे यहाँ सुंदरता का एक वो माना जाता है, कीर्तिमान माना जाता है, तो लेकिन ब्यूटी हर किसी में वास कर सकती है. जो ब्यूटी सिर्फ कलर से नहीं होती, वो एक अंदर कहीं होती है खूबसूरती. और मर्द की जो खूबसूरती है, या लोगों की जो खूबसूरती है, औरत की जो खूबसूरती है, उसके काम से होती है. तो अगर काम अच्छा करेंगे आप अपना, तो खूबसूरत लगने लगते हैं, ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगने लगते हैं आप. Shraddha, very recently Karan Johar, Saif and Shahid Kapoor mocked and joked about nepotism at IFA. Would you want to share? Oh, I have no idea about this. I don't watch TV, guys. So, Plus, can we please stick to the movie? but I have no idea about this, so I won't be able to comment. But what happened? We don't know. I don't know. Sushant, there was a humdrum around nepotism recently in Bollywood. So, have you ever faced something like that, or what is your take on that? See, I can only say through my experience, and I think in 2011 in October I decided to quit TV, and I was thinking of going somewhere else. But in next 3 months I got Kai Po Che, and from then onwards till now, all the films that I've released and all the films that I've signed for next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do. Not because there are like no options, but these are the films that I really wanted to do. So having this luxury of choosing the kind of scripts and projects out of many, so I cannot complain. So it's my personal experience. Having said that, well, yes, nepotism is there, and it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, so nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. But till then, it's
is fine. Nepotism can coexist with all the talented people also struggling at the same time, and you'll get wonderful films because they would be competing with each other, and that would raise the performance. So that's not a problem. You know, एक nepotism को लेके बहस से चढ़ी है. Oh God, don't get me into all this. You are the one who came, outside from the industry and you made yourself, recognized by everyone. आप क्या कहना चाहेंगे nepotism के बारे में? Do you think nepotism है Bollywood में? या वो तो नेपोटिज्म हर जगह ही होता है, ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं. और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जिनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ, प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो, वो भी बाहर से आई हैं. बट यू हैव टू फाइट योर वे आउट. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. यू हैव टू फाइट योर वे आउट. ओके, रिसेंटली एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में कंगना का मजाक उड़ाया गया नेपोटिज्म को लेके. वो कितना जस्टिफाई समझते हैं? Let her answer. Her quote is very important. What she thinks, she is one of the leading stars in the industry, and she came out from the industry. About Kangna? Yes. At IFA? Yes. And you were there? No, I wasn't there. I was not there. So मुझे actually पता नहीं क्या मजाक उड़ाया गया. नेपोटिज्म को आई थिंक वो गलत बात है ऐसे. बट आई थिंक वो मजाक सीरियस नहीं होता है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर अवार्ड फंक्शंस एंड हर कोई अपने इट्स जस्ट फॉर इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट. Much has been said about nepotism while knowing that you are an opinionated and a very talented person. Do you think that nepotism exists? I think this day and age, your talent only makes you survive. I think people who are doing well, who are the industry kids like Ranbir, Varun, Alia, they are brilliantly talented. That's why they're surviving. And probably, if you're a star kid, you can get a good launch. But apart from that, it's your own talent which makes you stay there forever. And I think your stakes are also very high. You have more pressure on you if you're a star kid. So I think right now, it doesn't really matter whether you're a star kid or not. That's what I feel. As an actor, what do you have to say about people, veterans in the industry mocking other celebrities, other actors on stage in gala events? I've not even followed that, frankly speaking. So I was busy with the dub and everything. So I think to each his own, to have their own opinions, and you can probably talk about it. But I think I've given my opinion. You want nepotism का? वो पेपर कल है, आज का सिलेबस अलग है. Yes, Atiya, you have a question. In all seriousness, I would like to answer that because what happens is it will just get misconstrued as a joke. It's something that's gone on for too long. हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ों के लिए जानी जाती है. एक चीज़ की वजह से क्या बाद का पतंग और बन के वो रबर की तरह खिंच चुकी है. I think we should all move ahead. ये नेपोटिज्म का सवाल मैंने हाफ गर्लफ्रेंड के दौरान भी जवाब दे चुका हूँ. आप मेरे कोई भी इंटरव्यू उठा के पढ़ सकते हैं. हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हम ऑडियंस के लिए पिक्चरें बनाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है वो हमें बार बार देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती. तो कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है लेकिन टिक नहीं सकता. वो टिकता अपने बलबूते पे अपने काम के नतीजे से है और उस वजह से. So I think all of you all also responsibly now should move ahead and find important and relevant things and the good things that the film industry is known for also, and not just one element that gives you headlines. हमारे पास बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जो हो रही है फिल्म इंडस्ट्री. जैसे अभी आपने कहा कि बहुत स्ट्रगलिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री है न्यू कमर्स के लिए, तो रियली फील नेपोटिज्म जस्ट एग्जिस्ट इन बॉलीवुड? हाँ, एग्जिस्ट तो होता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की पहचान से आते हैं, किसी की आप किसी के बेटे हैं या किसी की बेटी हैं, तो आपको चांस ज़्यादा मिलता है. लोग भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए भी फलाने का बेटा है. लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि उतना प्रेशर भी रहता है. आपको पेरेंट्स से कंपेयर किया जाता है, बाप को बेटे से कंपेयर किया जाता है कि आप इतना परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. नहीं यार, उस उतना अच्छा नहीं था. ही इज़ नॉट एज गुड एज हिज फादर, ही इज़ नॉट एज गुड एज हिज मदर. तो फिर वो कंपैरिजन भी आता है, तो वो भी आपको प्रेशर झेलना पड़ता है. बट आई ट्रूली बिलीव कि nepotism is not great. Talent is. I think talent is what matters at the end of the day, because सस्टेन जो करता है वो टैलेंट है. आज आप शाहरुख खान देख लीजिए, आज आप बड़े बड़े नाम देख लीजिए जो हिंदुस्तान की आज फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हुए हैं. दे आर आउटसाइडर्स. माई फादर वॉज एन आउटसाइडर, एंड मैं जब आया इंडस्ट्री में तो मैंने उनका नाम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया. हमने देखा नहीं वो प्रोग्राम, तो हमें उसको कमेंट नहीं कर सकते. हमने सुना नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता. और उन्होंने बोला नहीं. पर ये जो जैसे कह रहे थे कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं,
इसी विषय को आजकल हास्य परिहास के रूप में लोग करने लगते हैं, वो ठीक मानते हैं आप? जैसे कभी अवार्ड फंक्शन में हमने देखा कि लोग उस चीज़ को लेके हास्य परिहास करें। डू यू फाइंड दिस? किस चीज़ को लेके? क्या कहते हो शब्द? नेपोटिज्म। हाँ, देखिए मैं आपको ये बात बिल्कुल बता दूं कि ये दो बंदे तो आपके सामने बैठे हैं 40 साल से, जो किसी भी फिल्म फैमिली के नहीं थे। ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जात पात धर्म परिवार कुछ नहीं है, सिर्फ टैलेंट का कंपटीशन है। उनके भी बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं तो आ जाते हैं, अगर नहीं है तो रह जाते हैं। और देश के भी जितने बच्चे हैं टैलेंटेड हैं वो आ जाते हैं, चाहे दिल्ली से हों या पटना से हों या उधर से हों। कंपटीशन जो है इस सबसे खूबसूरती फिल्म इंडस्ट्री की यही है कि इसमें कुछ भी नहीं चलता है सिवाय टैलेंट के और मेरिट्स के। मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब हमने व्हिस्लिंग वुड्स का सोचा, एक विजन बनाया कि व्हिस्लिंग वुड्स खोलना क्यों है हमें, तो तब पापा ने यही कहा था कि जब मैं आया था व्हिस्लिंग बॉम्बे में, मुंबई में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे जैसे लोगों के लिए। तो व्हिस्लिंग वुड्स का आना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि हम उन बच्चों को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन बच्चों को भी जो आप गॉड फादर कहते हैं इंडस्ट्री में, उनको व्हिस्लिंग वुड्स का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, उनको चांसेस मिल रहे हैं और सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है, बढ़ाया जा रहा है। बट आई फील व्हिस्लिंग वुड्स का एक एडवांटेज ये है कि हम उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिनका कोई फिल्म कनेक्शन नहीं और है, इंडस्ट्री से कनेक्ट रहता है उनको। जी, होल इंडस्ट्री कम हियर एंड टीच देम। तो फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी वेटरन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और उन बच्चों का कनेक्ट रहता है। और ये बच्चे सब भारत से आए हुए हैं और फिल्म वालों के भी बच्चे हैं। आप ये फिल्म के परिवार के हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन बच्चों की ट्रेनिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। वो 10 साल में ही सीख लेते हैं अपने माँ बाप से एक अच्छी बातें, अच्छे गुण। ये उनके पास प्लस पॉइंट तो ज़रूर है, लेकिन आखिर में जो ठहरते हैं वो कंपटीशन में ही ठहरते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ उनको जल्दी मिल सकती हैं, लेकिन फाइनली कौन ठहरता है वो तो कंपटीशन है, मेरिट्स है। इनकी बात को, तुम्हारी बात को, इनकी बात को अगर समअप कर सकूं एक दो सेंटेंस में, तो यहाँ पे कलर ऑफ सक्सेस एक्सेप्टेबल है बिल्कुल, और स्मेल ऑफ फेलियर चाहे कहीं से भी आए, किसी क्वार्टर है, जो आदमी फेलियर है, सो कॉल्ड फेलियर, उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। कलर ऑफ सक्सेस चाहे जहाँ से आ जाए, तिब्बत से आ जाए कि आपको टिम्बकटू से आ जाए, कि डैनी डेंजोम्पा है, कि मिठुन चक्रवर्ती है, कि शत्रुघ्न सिन्हा है, कि अमिताभ बच्चन है। अगर इनकी कहानी में सक्सेस लगता है तो परिवार से आए कि परिवार, हालांकि हम लोग परिवार से नहीं आए हैं कोई, लेकिन आए हैं नहीं है वो मैटर नहीं करता। अंत तो टैलेंट बोलता है, जो कह रहे हैं टैलेंट। इस चीज को मजाक बना देना होता है कि कोई अरे मजाक तो आप लोग फिल्म इंडस्ट्री को, मजाक तो आप लोग फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड करके मजाक बनाया हुआ। मजाक सबसे पहले तो आपने किया इसको बॉलीवुड का नाम। बॉलीवुड कहाँ से है ये बॉलीवुड है क्या? क्या कॉपी? हम लोग कॉपिस्ट क्या आर वी कॉपिस्ट? यू वांट टू से कि बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड का कॉपी है। ये उन्होंने कहा था और हमने अपना लिया। आपने मंजूर कर लिया कि हम लोग नकलची हैं सब। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर कुछ नहीं है, हिंदुस्तानी फिल्में नहीं बनाते हम लोग, हिंदी फिल्में नहीं बनाते, उनकी कॉपी करते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये बॉलीवुड है।